Okay, so economy questions are here. It's GS paper 3. And before going into discussion, I would point out few things which are very important. Like there are things important subject wise. There are patterns. And in economy, it is more about interconnection of various segments of economy, how they are interconnected, how they are linked with growth, GDP, small sector, then monetary policy, fiscal policy, and you have to show the interconnection. And if there is new policy, new act, new initiative that is being taken by government of India, you have to have the ability to link it with the broader economic goals, and that is what is often asked. Second is that during, like when I checked copies, most often I find that a student don't get the demand, like most demand based mismatch or inaccuracy is there in economic question. They don't actually know what is being asked, and they write headings often are accurate, but they don't know or they don't grasp. So I would recommend that take some time, read very carefully in economic question, because one mishap could divert your whole linkage, and economy answers are mostly about linkages. So that being said, let's see if our two aspirants have been accurate in meeting the demand. And one more thing is that these questions are quite old and might not appear in the examination. Like history has a relevance and probability of reappearing, art and culture and geography, but these things, when they happen, and there is very low chances. But linkages are important, so I will discuss only linkages part and what is need to be developed, what are the things that have you have to keep in mind, and obviously the mistakes which are quite prominent, the one I talked about. So let's see. Discuss the impact of FDI entry into multi-trade retail sector on supply chain management in commodity trade pattern of economy. Okay, so क्या बताना है? What we have to discuss of impact of FDI entry into multi-trade sector. ये पूरा एक चीज है कि FDI इस सेक्टर में अलाउ हो गई है, ठीक है. दिस इज वन थिंग. इसका इम्पैक्ट हमें बताना है, इम्पैक्ट ऑफ दिस थिंग ऑन व्हाट सप्लाई चेन मैनेजमेंट इन कमोडिटी ट्रेड पैटर्न, दैट इज इन इकोनॉमी ऑफ रेलेवेंट है. तो इस पूरे का इम्पैक्ट हमें, इस ए का इम्पैक्ट, लेट्स से कॉल इट ए, तो हमें इस बी पे इम्पैक्ट बताना है. लाइक आई सेड, इफ यू कैन interlink things you can answer it comfortably, but if you cannot link, like FDI impact on supply chain management, and that too specifically in this multi-trade retail sector, and that is, there's a reason for that too, why they are being very specific. Because see, there are few parameters. One of them is impact. If a large section of population is being impacted, UPC will ask on that topic specifically, and that is a case of that, because a large number of population is engaged in a small trade retail sector, and that's why, like, millions of people were going to be affected. So question was here, and not just like service sector, but in that too, going a level beyond, they are talking about multi-trade retail sector. So there is always reason why they are asking, and that reason is impact. If impact is so grave or so widespread, they will ask questions on that. So let's see if our two students have written or at least understood the demand and are on point, or have missed the demand altogether. First introduction is foreign direct investment is considered as significant source of non-debt financial resource for economic development. So you are connecting FDI as a financial resource important for development. So you are connecting this, not with this.
not with this but this, right? So you can see you have to link this thing with this thing, and in broader perspective economy is obviously there. So immediate connection is missing in the introduction. Let's see the further headings. Impact of FDI on multi. A perfect example. A perfect example, I say. The question is not impact of FDI on this, but rather entry of FDI into this to that. The things we say and the things you do. I just talked about it and you have it. This mishap happens. Read the question again. Impact of FDI entry, not entry of FDI into this. On. सो कनेक्टर्स पे ध्यान दें. अगर आप इस पे ध्यान देंगे तो ये गलतियां नहीं होंगी. कनेक्टर्स पे ध्यान दें. ये पूरा एक चीज है. तो इसका इस पे इम्पैक्ट बताना था एंड यू हैव रिटन इम्पैक्ट ऑफ दिस ऑन दैट. Okay, let's see if the content is accurate, positive, infusion of capital, employment opportunity. अब देखो आप इस पे बात करोगे तो ऑब्वियसली आप ऐसी बातें करोगे. अगर आप इसको सप्लाई चेन मैनेजमेंट एसपीएम और पैटर्न पे बात करते, ट्रेड पैटर्न पे, तब आप कर पाते ना. ठीक है, तो एसपीएम क्या है? सप्लाई चेन मैनेजमेंट, पूरा जो प्रोसेस है ये आपको समझना पड़ेगा. ये लिंकेज इंपॉर्टेंट है. एसपीएम क्या? बेसिकली इट कनेक्ट्स इन बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड. तो बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड में क्या? बेसिकली जहाँ जहाँ कहीं पे भी चीजें हैं जो प्रोड्यूस हो रही हैं, ठीक है, देन आपके मिडल मैन आते हैं बेसिकली, देन एंड रिटेलर आते हैं, एंड देन यू आर द कस्टमर. ठीक है, दिस इज व्हाट इट इज. इसमें लॉजिस्टिक सेक्टर है, इसमें स्टोरेज सेक्टर है, इसमें कोल्ड चेन है, एंड ऑल दीज थिंग्स आर देयर. तो दिस इज व्हाट इट इज. अब इसमें क्या फर्क पड़ता है? सीधे सीधे एफडीआई का बेस्ट एग्जांपल है फ्लिपकार्ट एंड अमेजोन. ठीक है, आप क्या कर रहे हो? ये पूरा ये जो बीच के डिस्ट्रीब्यूटर, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूटर, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूटर, इन सबको हटा के सीधा क्या कर रहे हो कि देयर यू आर क्रिएटिंग अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे सीधे आप सोर्स से, किसान से या जिससे भी सोर्स से सीधे प्रोडक्ट ले रहे हो और डायरेक्टली ऑफर कर रहे हो. तो ये पैटर्न यहाँ पे आपको बात करना था इसमें. ठीक है, देन उसमें रिलेटेड जो चैलेंजेस थे, उसमें जो यहाँ पे हमारे बहुत सारी जो मैंने बात की कि जो सेगमेंट अफेक्टेड था उस पर बात करना था. ओके, नेगेटिव, यस, दैट इज व्हाट इट इज. कि adversely affect small traders, middleman, can result into exit of domestic retailers. आपने इतनी बात कर दी, ये है, और ये पैटर्न पे आपको ये चीज दिखाना था. ओके, इन्होंने क्या किया है? लेट्स होप कि इन्होंने पकड़ा हो. डिस्कस इम्पैक्ट ऑफ, ठीक ठीक ठीक, इंट्रोडक्शन लिखा है. एफडीआई बूस्ट द कैपिटल रिसीट ऑफ अ कंट्री. एफडीआई बूस्ट, तो वर्ब वाला इशू है ना. कैन बूस्ट लिखो या फिर बूस्ट, बट बूस्ट नहीं होगा, कैन है ना. मे और मे नॉट वाला एस्पेक्ट है. रिसीट और कैपिटल रिसीट, आप गवर्नमेंट बजटिंग में थोड़ी ना बात कर रहे हो, बट ठीक है, इट कैन डू. ऑफ अ कंट्री एंड इट्स recent entry in India's multi-trade retail sector will help in trade development and will impact other development. ये होता है सुपरफ्लुअस का एग्जांपल. क्या मतलब अदर डेवलपमेंट? कोई इस चीज का हाथ पैर है? जब इकोनॉमी पे बात हुई, इकोनॉमी पे बात करिए. दिस इज एग्जांपल ऑफ सुपरफ्लुअस स्टेटमेंट. यहाँ कुछ और भी चीजों पे डेवलपमेंट होगा, क्या नहीं पता. सो आई वुड से कि बी स्टिक टू योर ग्राउंड. जो भी इंट्रोडक्शन है, जितना आता है उतना बताओ. इसका इम्पैक्ट इस पे होगा, खुद ही दे रखा है. ब्रॉडर सेक्टर इकोनॉमी पे होगा, उसमें तुम्हारा पूछ भी रहा है किस पे? सप्लाई चेन मैनेजमेंट पे, कमोडिटी ट्रेड पैटर्न पे. बेसिकली सप्लाई चेन इन कमोडिटी ट्रेड. तो कमोडिटी ट्रेड पैटर्न में क्या है एक एस्पेक्ट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, उस पे क्या है? इट्स मोर लाइक कि इस ये सेक्टर है. विच सेक्टर इज दैट?
मल्टी ट्रेड सेक्टर, इसमें क्या आया है, एफडीआई। ठीक है, इसका इम्पैक्ट हमें बताना है किस पे, ये एक पैटर्न है, कौन सा पैटर्न है, कमोडिटी ट्रेड पैटर्न। उसमें है कमोडिटी ट्रेड पैटर्न में एसपीएम, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। समझ में आ रहा है किस लेवल पे क्वेश्चन घुस के बात कर रहा है कि ये सेक्टर ए है, ये सेक्टर बी है, इसमें ये है, इसका इम्पैक्ट इस पे बताओ। पूरा सेक्टर भी नहीं पूछ रहा है, सेक्टर सेक्टर नहीं पूछ रहा है, इसमें बहुत स्पेसिफिक चीजें पूछ रहा है। I hope you can now clearly see the demand of the question. Okay, impact of FDI in multi-retail sector। देखो आपने भी exactly वही काम किया है, exactly वही काम किया है ना। तो इस चीज को सही करें, और जो जहाँ पे क्वेश्चन पूछा है अगर आप वहीं पे बात नहीं करोगे तो ऑटोमेटिकली गड़बड़ हो जाती है। कई चीजें आप अच्छी लिखोगे, आप समझोगे, तो इट्स लाइक व्हेन यू टॉक इन सरकम अराउंड मैनर नो, तो आप कुछ न कुछ बातें तो कहोगे और उसको जोड़ भी सकोगे, है ना। बट इफ समवन इज टॉकिंग डायरेक्टली एंड लिंकिंग डायरेक्टली, देन इट क्रिएट्स अ बेटर आंसर, है ना। बहुत क्लियर है तो इट शोज क्लैरिटी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन, इफेक्टिवनेस, ऑर्डरलीनेस, एंड हेंस दिस answer will be rewarded better. It will get somewhat 2 to 4 marks and it will start with 4 to 6 marks. क्या लिखा, बूस्ट सप्लाई चेन इंफ्रा डेवलपमेंट, प्रमोट एक्सपोर्ट। अब देखो इसके लिए आपको थोड़ा सा और डीप में जाना पड़ेगा, लाइक ऐसे ना कि आपको सप्लाई चेन मैनेजमेंट पढ़ना पड़ेगा, और एक कमोडिटी ट्रेड पैटर्न से क्या मतलब है, तो जो फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेज है ना सिलेबस में, उसी से जुड़ा है। नेक्स्ट, और जब बॉडी वाला अच्छे से डिस्कस करेंगे, बट ये यार पढ़ाने वाला बात हो जाएगी ना कि आपको मैं बैठ के पढ़ाऊं कि क्या है ये चीज़ें, है ना। हम डिस्कस करने बैठे हैं इंट्रोडक्शन एंड डिमांड एंड कंक्लूजन, सो आई एम स्किपिंग दैट। बट जब वापस से जब बॉडी करेंगे, क्योंकि आप एक बार पढ़ लो फिर से आप आंसर लिखना, देन विल डिस्कस दैट। limitations, should not over regulate, slow economic growth. Now when you don't meet that demand, then बाकी चीजें तो ऑटोमेटिकली गड़बड़ हो जाती हैं। और डिस्कस लिमिटेशंस, अब लिमिटेशन आपको इस पे बताना है ना, और ये भी लाइक दे आर प्लेइंग with words, they're not even telling you this, they are also telling this is a segment of economy. So आपको लास्ट में बेसिकली एसपीएम, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ट्रेड पैटर्न एंड इकोनॉमी से रिलेटेड एक ओवरऑल स्टेटमेंट देना होगा, अगर कंक्लूजन में अच्छा इंट्रोडक्शन कंक्लूजन दे रहे हो तो, कि दिस इज एक्सपेक्टेड टू मेक इट एफिशिएंट, इफेक्टिव, टाइमली, इनहेंसिंग ट्रेड पैटर्न, हेंस ट्रेड एंड बूस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ। इस तरीके से चीजें लिंक्ड है। Next question is, though India allowed FDI in what is called multi-brand retail through the joint venture route in September 2012, the FDI even after a year has not picked up. Discuss reason. Okay, चलो डिमांड सबसे पहले समझते हैं, क्योंकि लाइक आई सेड लिंकेज अगर नहीं है तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो एटलीस्ट इस एक्सरसाइज से आप डिमांड इकोनॉमिक क्वेश्चंस की समझना शुरू कर दोगे, एंड देन आई थिंक विद ड्यू टाइम यू विल स्टार्ट अप्रिशिएटिंग द इंटरलिंकेजेस। सो उसी पे फोकस करता हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि वो इस वक्त मुझे ज़्यादा जरूरी लग रहा है। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। दो इंडिया अलाउड, हाँ इंडिया ने अलाउ कर दिया, इस बात का भी तो कोई रेलेवेंस नहीं है जॉइंट सेक्टर से। तो यहाँ तक एक सीधी सी बात कह रहा है कि हमने अलाउ कर दिया है। कहाँ पे अलाउ कर दिया है, मल्टी ब्रांड रिटेल में। कैसे अलाउ किया है, जॉइंट वेंचर रूट से अलाउ किया है, ठीक है। क्या, एफडीआई अलाउ हमने कर दिया, जैसे हमने तुमको अलाउ कर दिया कि तुम आ सकते हो, बट ये आ नहीं रहे,
That's what it is. That's what the second statement. The FDI एक साल बाद भी नहीं आ रही है, क्या रीजन? दिस इज द क्वेश्चन. ठीक है, तो हमने अलाउ तो कर दिया है. अलाउ लाइक इस किस तरीके से किया है, तो एक सबसे बड़ा समस्या ये है, इसको आपको डील करना होगा जॉइंट वेंचर में. देन उसके अलावा और भी सिर्फ अलाउ कर देने से, लाइक मैं बोलूँ तुम मेरे घर में आ जाओ, मैं गेट ही न खोलूँ तो. सो देर आर अदर बैरियर्स, राइट? यू हैव टू डिस्कस दोज बैरियर्स देयर. और लेट्स एक और एग्जांपल देता हूँ, यू कैन कनेक्ट इट वेरी इजीली. I allow you to come into my house, but I have my dog, my dog outside, and it's a ferocious one. You would be apprehensive and you would not take into it, right? तो ऐसे ही कई टर्म्स एंड क्लॉज एग्जिस्ट करते हैं जिसकी वजह से कंपनीज डिड नॉट इन्वेस्ट. तो वो आपको यहाँ पे बात करनी थी. आई होप आपको डिमांड बहुत अच्छे से यहाँ पे अब क्लियर हो गई होगी. क्वेश्चन कि आपको क्या बात करना था कि क्यों नहीं आ रहा एफडीआई इस सेक्टर में, और इस सेक्टर स्पेसिफिक आपको ये टर्म्स क्लॉज और बैरियर्स पे बात करना था. क्या लिखा है? इंडिया अलाउड एफडीआई टू मीट कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द कंट्री विच हेल्प इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एज मल्टी ब्रांड रिटेल थ्रू through joint venture route to boost the economy. अभी इसको ऊपर लिखते, देखो दो बातें इसमें रिडंडेंसी आ गई. पहले ये लाइक ऑब्वियसली इसीलिए है, बट आप कहना क्या चाह रहे हैं? ये तो चीज खुद ही वहां पे दी हुई है, राइट? ये चीज दी हुई तो इसका क्या फेर है? रिडंडेंट इंफॉर्मेशन दे रहे हो, या तो इसको दोनों को एक ही साथ इंटरकनेक्ट करके बोलते. ठीक है, like to boost economic growth, India has allowed multi-brand retail, FDI in multi-brand retail through joint venture. बट ये तो खुद ही ऊपर दिया हुआ है ना? तो आप समझ रहे हो, आप उसी बात को फिर से घुमा के, आई वुड से अ गुड एग्जाम्पल ऑफ सुपरफ्लुअस इंट्रोडक्शन. आप उसी बात को फिर से घुमा के सिर्फ एक चीज आपने क्या बता दिया है? रिक्वायरमेंट. रिक्वायरमेंट हमारा नहीं है, इट इज डिजायर्ड. रिक्वायरमेंट नहीं है, it is desired to have that. Requirement मतलब there is an element of necessity which help economic development. तो शब्द थोड़े से और बेहतर करिए, और सिंपल अगर नहीं था तो इसमें क्या इंट्रोडक्शन लिख सकते थे कि एफडीआई इन मल्टी ब्रांड was expected to bring foreign capital. ठीक है ना? क्या वो कोर है, तो आप उसका इंसाइट थोड़ा सा दे सकते थे. जो आप कहना चाह रहे हो मैं समझ रहा हूँ, बट इट्स नॉट क्लियर, इट्स नॉट इफेक्टिव. नेक्स्ट आपने क्या लिखा है? जॉइंट वेंचर. ठीक है, ये बहुत अच्छा काम किया है कि आपने जॉइंट वेंचर, क्योंकि ये आपको वन ऑफ द बैरियर्स है, तो आपने उस चीज़ को डिफाइन कर दिया. ठीक है, रीजन बिहाइंड नॉट पिकिंग अप, ग्लोबल स्लोडाउन, लैक ऑफ डिमांड. ग्लोबल स्लोडाउन कहाँ 12-13 में था? अब तो पिकअप लाइक रिकवरी हो रही थी ना 2008 क्राइसिस. लैक ऑफ डिमांड, ओवर रेगुलेशन ऑफ गवर्नमेंट है, ये चलेगा. ये आपका कहाँ से कनेक्शन हो रहा है? नॉट डेडिकेटेड रेगुलेटरी मैकेनिज्म. ठीक है, इनएडिक्वेट फंड एंड टैक्स. अभी इनएडिक्वेट फंड है तो एफडीआई सही नहीं बैठ रहा है ना. तो इसमें आप फिर से देखिए, वैसे अब जरूरत नहीं है, बट अगेन एफडीआई जब भी आता है तो उसमें सबसे बड़ा इनका एप्रीहेंशन होता है कि कैन वी गेट आवर मनी बैक. तो कुछ बड़े जो एग्जांपल मैंने बोला ना, गेट वाला, वो है कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी, कि तुम भैया आओगे तो ये पूरे बड़े गेट से आओगे. ठीक है, जितना पैसा इन्वेस्ट करना है कर लो, बट जब वापस लेके जाओगे ना तो ये छोटे वाले गेट से जाना पड़ेगा. दैट इज व्हाट इंडिया इज फॉलोइंग कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी में, लिमिटेड कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी के साथ इन केस ऑफ एफडीआई. सॉरी. तो एक तो ये वजह है. देन आपके
टैक्स रेजीम है, रेगुलेशन, जॉइंट वेंचर में बैरियर टू एक्सचेंज डाटा, कल्चर, इंफॉर्मेशन, टेक्नोलॉजी, ये सारी चीजें थी। अगर डायरेक्ट करते तो एंड प्रॉफिट मोटिव से भी कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। तो देयर आर सो मेनी थिंग्स विच एक्टेड एज इंडर लेबर लॉज। तो वो सारी बातें थी। नेक्स्ट इन्होंने क्या लिखा है, इंडिया हैज अलाउड 100% एफडीआई इन मल्टी ब्रांड रिटेल सेक्टर बट स्टिल एफडीआई हैज नॉट पिक्ड अप। अगर ये 100% था तो भाई अच्छी बात है, क्योंकि आई थिंक लेटर ऑन इट अलाउड, बट अगर ये है तो बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन है। Because lacuna in policy opposition from small retailers, additional conditions। ठीक है, कुछ कुछ पॉइंट आ रहे हैं और ऑब्वियसली सोच के अपने लैक ऑफ नॉलेज एक्सपीरियंस है, बट ओवरऑल ठीक है चीजें। डिस्कस द रीजंस, बिकॉज यहाँ पे रीजंस है ना, रीजन कभी भी ऐसे पूछे तो सीधा सीधा हेडिंग से तो कभी नहीं, रीजन साफ साफ भैया ह्यूमन फैक्टर को हमेशा ध्यान रखना है, अच्छे से ये करके पूरा दिखा दो रीजंस। ह्यूमन फैक्टर पे तो एक नंबर नहीं गंवाना है, सिली मिस्टेक्स पे नंबर नहीं गंवाना है, तो ये चीजें आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द कंसिडरेशन टुवर्ड्स द स्ट्रेटजी ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ। ओके, एक क्वेश्चन तो इन्होंने यही पूछ लिया है, what is the consideration towards a strategy of inclusive growth? The new companies bill has indirectly made CSR a mandatory obligation. Discuss the challenges expected in its implementation in right earns. Also discuss other provision in the bill and their implications। थोड़ा सा डिस्टेंसिंग और बढ़ाइए। ओके, तो तीन कितने पार्ट हो गया, सबसे पहला तो हमारा ये हो गया, इसको डिस्कस करना है भाई, सॉरी व्हाट है ना, कंसिडरेशन बताना है, देन डिस्कस हमें दूसरा ये करना है, challenges expected in implementation, देन तीसरा हमें डिस्कस करना है प्रोविजंस, अरे बाबा चार चीजें हैं, इन देयर इम्प्लीकेशंस। ठीक है, तो इतना जब पार्ट है ना तो आपका माइंड जो है ना ये इम्प्रोविजन या टू इम्प्रोवाइज बोलते हैं ना, वो मोड में काम करना चाहिए। यहाँ पे आप डिस्कस चाहे कुछ भी बोले ना, ये वो ये जस्ट हैव टू बी राइटिंग लाइक 4-5 पॉइंट, सोचो ना, ये 4 पॉइंट इधर, 4 पॉइंट इधर, 4 पॉइंट इधर, 16 पॉइंट्स तो ऐसे हो गए, और इतना में ही आपका लाइक अगर 15 मार्क कर लेना तब भी बहुत समस्या हो जाएगी, और 2-2 नंबर जोड़ लिए तो 8 नंबर आपके बन गए बड़े आराम से। अच्छा इंट्रो और कंक्लूजन दे दिया तो यू कैन गेट अराउंड 8 to 9 मार्क्स इजीली विद दिस थिंग, विदाउट लाइक पूरा यहाँ पे अभी हमें डिस्कस का फॉर्मेट नहीं फॉलो कर सकते। तो दैट इज व्हाट आई टॉक, कि आपको ये एक्सपीरियंस जाएगा। यहाँ पे यू हैव टू अबैंडन दैट होल थिंग, पूरा फॉलो नहीं कर सकते, और डिस्कस तब काम करता है जब एक सिंपल क्वेश्चन है उसमें डिस्कस बात कर रहा है, देन यू विल ऐड लिमिटेशन और अगर कुछ और पॉइंट है तो। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जानने, समझने और लिखने के लिए भाई। सो इन्होंने पूछा है कंसिडरेशन टुवर्ड्स द स्ट्रेटजी ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ। चलो देखते हैं भाई। वाओ, नाउ आई सी अ वेरी डिफरेंट थिंग। इन्होंने लिखा है विथ और इन्होंने लिखा है व्हाट। अब if there is a definition of silly mistake, then I think this is it। अगर कुछ और है तो भाई आप बताएं कि आप विथ को व्हाट लिख के आंसर कर दोगे, और डेफिनेटली आपका ये ना एक्सपेंड किया होगा, इनका नहीं किया होगा। चलो देख लेते हैं भाई। इन्होंने बात किया है इंडिया लाइक
with consideration towards a strategy of inclusive growth, new companies bill has indirectly made CSR a mandatory obligation. ये फिर एक स्टेटमेंट हो गया, ये पार्ट नहीं होगा, फिर ये सिंपल से एक स्टेटमेंट है, इसमें आप इंट्रोडक्शन में बस इस पार्ट को एडजस्ट कर दोगे एंड दैट विल बी योर इंट्रोडक्शन। डिस्कस ये बहुत अच्छा इन्होंने मार्क किया है। और आपका देख लो, अब पक्का बता रहा हूँ, अगर आपने ये व्हाट लिख के किया है तो आपका पूरा आंसर डेविएट कर गया होगा। दिखाता हूँ, इंक्लूसिव ग्रोथ है इज अवेलेबल टू ईच एंड एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी इन इक्विटेबल। आप इंक्लूसिव ग्रोथ बता रहे हो जबकि ये कुछ दिस इज नॉट द डिमांड। अगर ये विथ है तो लेट मी सी, विथ है या व्हाट है? विथ है। सो ऐसी लाइक आँख खोल के वाली चीज़ें ध्यान में रखें, ऐसी एक अंधों वाली गलतियां मत करें भाई। देख लो, आप पूरा ये स्ट्रेटेजी पे बात कर दियो है ना। इज इट रिक्वायर्ड? नो, बट इज इट टेकिंग योर टाइम? पेज वर्ड ऑब्वियसली। अब फिर आप बाकी चीज़ें नहीं कर पाओगे। इंक्लूसिव ग्रोथ विजन फ्रॉम कंपनीज, प्रोविजन 3 टाइप 1, ठीक है, आप बातें किए हो, but you are totally going to miss out the demand and hence you are not going to get marks। यहाँ पे क्या आपको दिखना था, इन्होंने क्या लिखा है? इंडिया became first nation to made CSR a mandatory obligation through companies act to achieve target of inclusive growth। ये सटीक इंट्रोडक्शन है क्योंकि ये हमारा जो एक फर्स्ट स्टेटमेंट है, ये कहीं से कोई लाइक इट इज नॉट आस्किंग एनी क्वेश्चन, नथिंग, बट एक कॉन्टेक्स्ट दिया है, हमने कॉन्टेक्स्ट को जस्टिफाई कर दिया है। दिस इज अ गुड इंट्रोडक्शन। देन चैलेंजेस इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोविजन, बहुत अच्छी हेडिंग्स, राइट टू द पॉइंट। देन हमारा नेक्स्ट था प्रोविजन इन बिल, प्रोविजन ऑफ बिल, implication, successful implementation can help attain country its goal of equity in social economic dimension। ओके, बड़ा कर दिया बट ठीक है। व्हाट यू आर ट्राइंग टू से, थोड़ा सा रिडेंडेंसी आ गया यहाँ पे जब आप बोल रहे हो ना, इट मेड एनी कैन मेक इंडियन सोसाइटी इंक्लूसिव सोसाइटी, है ना। मेड तो पास्ट टेंस हो जाएगा ना, तो ग्रामेटिकल एरर्स अवॉइड करिए भाई। बट ओवरऑल फ्रेमवर्क इज लाइक व्हाट इज रिक्वायर्ड। 100% आई वुड से कि फ्रेमवर्क आपका सही आया यहाँ पे, और आपका यू कैन सी फॉर योर सेल्फ, राइट। एक छोटी सी गलती एंड नाउ यू डोंट हैव CSR मैंडेटरी ऑब्लिगेशन इन प्रोविजन। तो यहाँ से और हमें क्या लर्निंग लेनी है, अपार्ट फ्रॉम किसी लिए मिस्टेक नहीं करना है। CSR अभी भी इम्पोर्टेंट है, तो CSR आपको अब मालूम होना चाहिए कौन से सेक्शन में है, ठीक है। कहीं पे भी आपका एथिक्स में भी कई बार आता है CSR, वहाँ पे आपका ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर है, वहाँ पे इंक्लूसिव ग्रोथ आता है, तो आप यहाँ से सीख सकते हो कि दिस इज एन इंस्ट्रूमेंट। तो कहीं पे भी इस तरह से आता है इक्वलिटी या इनइक्वलिटी को खत्म करने का, दिस इज अ पावरफुल टूल, है ना। कंपनी से आप सिर्फ सोशल डेवलपमेंट के नाम पे पैसा ले रहे हो, है ना, टैक्स तो लगाते ही लगाते हो, प्लस दिस थिंग इज देयर। अभी इन्वायरमेंटल भी लेके आए थे और पता नहीं क्या क्या, सो दैट इज सम kind of like going to extreme, but that's fine। But what we have to learn is that this has powerful implication for economy, for like paper 3, paper 4, ethics paper, and to an extent ये हमारा GS पेपर 2 में भी पूछ सकते हैं। प्रोविजन कंपनीज इज लाइक जो पूछा ये है, तो आंसर पेपर 2 का ना, तो बी अवेयर ऑफ दिस थिंग्स, पूछ लेते हैं कई बार इधर का उधर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है
व्हाट वर द रीजन फॉर, और मैं इसका पूरा इंट्रोडक्शन ऐसा चीज नहीं दे रहा हूँ क्योंकि जो सेकंड वाला आंसर है ना इट समवॉट डज दैट. What were the reason for introduction of the FRBM Act 2003 discussed critically its salient feature and effectiveness. तो हमें सबसे पहले रीजन देना है ना, एक इंट्रोडक्शन शॉर्ट में देके रीजन देना है कनेक्ट करके. डिस्कस क्रिटिकली इट्स सेलिएंट फीचर एंड इफेक्टिवनेस. तो डिस्कस करना है क्या, अगेन तीन पार्ट हो गए. लाइक आई टोल्ड यू, तीन पार्ट कभी भी आए तो अबेंडन दीज थिंग्स. हमें स्ट्रिक्टली पूरा फ्रेमवर्क नहीं करना है, बस क्रिटिकली बोलना है तो एटलीस्ट तीन ऑब्जर्वेशन आप दे दो जो क्रिटिकल नेचर की हैं. हेडिंग डाल के अगर दे सकते हो तो तीन ऑब्जर्वेशन आपको एटलीस्ट देनी पड़ेंगी, जहाँ पे आप पॉइंट डाल के तीन ऑब्जर्वेशन लिख दो. और तीन से ज़्यादा जनरली होती नहीं है इसमें, फिर आप बना रहे होते हो. डोंट ट्राई टू डू दैट. देखते हैं इनका इंट्रोडक्शन क्या है. FRBM Act introduced to help management of public fund and लोअर फिजिकल डेफिसिट रेट. भैया FRBM को ही आप डिकोड कर दोगे ना तो इसी के अंदर पर्पज लाइक इम्बाइब्ड है. फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट, दो पर्पज यही खुद ही अपने नाम में ये रखा है, कैसे आप मिस कर सकते हो. दैट्स व्हाट आई कॉल डिडक्टिव रीजनिंग. यूज दिस थिंग्स, है ना. फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब रीजन वाज दैट देयर वाज वाइड स्प्रेड फिजिकल इनडिसिप्लिन. और बजट मैनेजमेंट क्या मतलब फिजिकल डेफिसिट के टर्म में. सो टू ब्रिंग अबाउट फिजिकल डिसिप्लिन एंड डिक्रीज ग्रोइंग फिजिकल डेफिसिट, ये हम लाए थे. दीज वर द टू मेन रीजंस एंड यू हैव टू टॉक अबाउट दैट. तो फिजिकल डेफिसिट तो आपने बात कर दी, ये बड़ा सा जो टर्म डाल दिया ये गड़बड़ हो गया. पब्लिक फंड्स इज अ वेरी डिफरेंट टर्म देन बजट, है ना. बजट से स्पेसिफिकली डील करता है, बजट में एक पार्ट है पब्लिक फंड. रीजन फॉर इंट्रोडक्शन, तो आप सिंपल जो है एक इंट्रोडक्शन देते, रीजन यही है टू ब्रिंग अबाउट डिसिप्लिन इन बजटिंग, कंटेन डेफिसिट ट्रेंड, ठीक है, फिजिकल कंसोलिडेशन, ये जो टर्म पूछ चुका है, ये आपके रीजन है. सेलिएंट फीचर में हाँ ये टू द पॉइंट है कि रेवेन्यू डेफिसिट इतना करना है बाय दिस, ये भी इतना. ऑब्लिगेशन ऑन सेंटर एंड स्टेट प्रोहिबिट, बेसिकली दोनों चीज़ों को सेंटर और स्टेट का बेसिकली बताता है कि सेंटर का इतने जा सकता है, सेंटर एंड स्टेट लेवल पे दोनों पे बात करता है. तो आप अगर दिखाओ तो और बेहतर है, बट ओवरऑल ये भी सही है. क्रिटिकल डिस्कशन ऑन इट्स इफेक्टिवनेस, इस पे आप क्या ही डिस्कशन कर सकते हो. ये आप जो एक हेडिंग यहाँ पे डाले हो ना, ये काम कर जाएगा, इसकी अभी जरूरत नहीं थी. आपको सिर्फ सेलेंट फीचर में क्या क्रिटिकली डिस्कस करोगे ना, आप इसके इफेक्टिवनेस वाले में ही तीन पॉइंट ऐड कर देते हैं. फॉर एग्जाम्पल आप ये बात करते हैं अभी जो 2021 जो इकोनॉमिक्स वाले ने बात किया था ना कि व्हाट वाज द एग्जैक्ट टर्म, बेसिकली डेट सस्टेनेबिलिटी की बात किया था कि शुड यू व्हेन शुड यू टेक डेट, और उधार कब लेना है. तो देयर आर टू सिनेरियो, लाइक इफ डेट इज सस्टेनेबल एंड लीडिंग टू ग्रोथ देन इट इज रिक्वायर्ड बेसिकली फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर की जब बात होती है तब. बट व्हेन यू आर टेकिंग डेट टू मीट revenue expenditure which is consumptive in nature and do not create any asset or any kind of revenue, then it is not required and this should be avoided. ये यहाँ पे आपका viability analysis करते हो and if it is creating asset revenue which are sustainable then obviously you should take that कंसिडरिंग लाइक लॉन्ग टर्म जो पैटर्न जो है. पूरा इकोनॉमिक्स ने बहुत अच्छे से डील किया था कि आप लॉन्ग टर्म पैटर्न देखते हो, उसमें आपका हिकअप्स अगर आ सकते हैं, बट आई एम अगेन टीचिंग दैट इज नॉट व्हाट इज रिक्वायर्ड. तो एक ये आपको ध्यान में रखना होता है. दूसरा आपको
the hiccups basically, like 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस है, कोविड है, तो ये चीजें इसमें डील नहीं हुई थी. दे वर लेटर एडेड बाय इंक्रीजिंग कमिटी रिकमेंडेशन स्कीप क्लॉज के थ्रू. ठीक है. देन फर्दर किए एक पॉलिटिकल इन सेंस दैट इट इज प्रोरेगेटिव ऑफ लाइक एग्जीक्यूटिव है ना, आप उस पर एक लिमिटेशन लगा रहे हो. तो ये लाइक पॉलिसी क्वेश्चन था, बट ओवरऑल दीज वर द थिंग्स जो यहाँ पे आपको डिस्कस करने हैं या अभी भी ध्यान में रखने हैं, और जो कि कहीं पे भी बात करोगे तो आ सकते हैं. ठीक है. नॉट ऑल डेट आर बैड, कुछ डेट अच्छे हैं, रिकमेंड रिक्वायर्ड है. इन्होंने क्या लिखा है, क्रिटिकल डिस्कशन वाइल इट वाज सम अर्ली देयर वाज सम अर्ली सक्सेस बट टारगेट मोस्टली वेंट अनमेट ड्यू टू. ये इफेक्टिवनेस पे कुछ चीजें हैं कि हाँ ऐसी चीजें हुई थी, एंड देन इफेक्टिव नहीं है क्योंकि पार्लियामेंट कैन अगेन व्हाट इट हैज बीन डूइंग. 2008 में टारगेट मीट करना था, बट दे आर शिफ्टिंग द गोल पोस्ट अगेन एंड अगेन. सो ये चीज है. अभी देखो कितना बढ़ गया डेट. तो यही आपको यहाँ पे दिखाना था कि दो चीज़ों से, एक तो तुम्हारा पॉलिटिकल विल पे डिपेंड करता है, और दूसरा इकोनॉमिक सिचुएशन जो कि स्टेबल नहीं होती हैं, तो दे कैन हिंडर इट्स इम्प्लीमेंटेशन. इन्होंने क्या बात किया है, FRBM 2003 introduced to tackle the challenges in the fiscal. अराइजिंग क्यों, जरूरत नहीं है. टू टैकल द चैलेंजेस इन फिजिकल एंड बजट एरिया एंड एड्रेस इट प्रूडेंटली फॉर हेल्दी इकोनॉमिक डेवलपमेंट. छोटे छोटे ग्रामेटिकल इश्यूज हैं, उसको एड्रेस करिए, थोड़ा सा छोटा करिए, है ना. बट ठीक है. Reason for introduction, decreasing taxation and increasing expenditure in social development, high fiscal. These are not the things which were required. जो इन्होंने लिखा है फर्स्ट आंसर में, that's like 3 रीजन आप में नहीं देख सकते हो. Contain deficit, growing deficit, bring about discipline and fiscal consolidation. Salient features इन्होंने लिख रखा था, इफेक्टिवनेस ऑफ दिस पिक्चर. लिमिटेशन नहीं, अवॉइड कर दो भाई लिमिटेशन. आप वे अहेड बात करोगे कि देयर आर नीड फर्दर रैशनलाइज एंड गवर्नमेंट नीड्स टू फॉलो द रिकमेंडेशन स्ट्रिक्टली. नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूड सिक्योरिटी बिल इज एक्सपेक्टेड टू एलिमिनेट हंगर एंड माल न्यूट्रिशन इन इंडिया. ठीक है. यहाँ पे अगेन सिर्फ ये स्टेटमेंट है, राइट. इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है. क्रिटिकली डिस्कस वेरियस एप्रीहेंशंस इन इट्स इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन अलॉन्ग विद द कंसर्न इट हैज इन WTO. ठीक है, यही क्वेश्चन है ना. इट हैज जनरेटेड इन WTO कंसर्न. ठीक है. तो ये आपको पहला जो पार्ट है, सिर्फ ये एड्रेस इंट्रोडक्शन में इसको जस्टिफाई करना है, कुछ नहीं, सिर्फ इंट्रोडक्शन में ही डील करते हुए थोड़ा सा आप ये लिंक कर दोगे, लिंकेज स्टेटमेंट के साथ आप सेकेंड पार्ट पे आ जाओगे, थर्ड की सीधे हेडिंग डाल दोगे, काम खत्म, कंक्लूजन दे दोगे. क्लियर है फ्रेमवर्क. National Food Security Act was passed to provide subsidized food grains to around 75% rural population and 50% overall population. Thirdly, thereby trying to eliminate hunger and malnutrition in India. ठीक है. ठीक है, अच्छा है, आप लिख सकते हो. इट्स गुड इंट्रोडक्शन कि हाँ ये इतनी चीज़ें करने की कोशिश कर रहा है, एंड इसके थ्रू हंगर एंड आपने दिखा दिया, कॉन्टेक्स्ट को जस्टिफाई करने की कोशिश की है, दैट्स फाइन. फूड सिक्योरिटी एक्ट वाज ब्रॉट टू
इफेक्ट टू मीट द एसडीजीज ऑफ एलिमिनेशन हंगर एंड। एसडीजीज कब आए हैं जी, कब से कब तक है? तो इस चीज के लिए अवेयर रहिए ना, 15 से 30 के लिए ना। क्वेश्चन है 13 का, 14 में आप एटमोस्ट लिख रहे होगे। हंगर एंड, सॉरी आई गॉट डिस्ट्रैक्टेड, फिर से पढ़ रहा हूँ। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 वाज ब्रॉट इन इफेक्ट टू मीट द गोल ऑफ, यहाँ पे सीधे एलिमिनेटिंग हंगर एंड पॉवर्टी, पॉवर्टी हो सकता है इन इंडिया, ठीक है। यहाँ पे क्या है, एलिमिनेट हंगर एंड माल न्यूट्रिशन, आप पॉवर्टी मिटा रहे हो भाई। बट देयर आर वेरियस एप्रीहेंशन अडियर टू इट। देखो हर कोई इतनी चीज़ें इतने डिटेल में जैसे मैं पढ़ता हूँ तो एग्जामिनर इतना नहीं पढ़ेगा, बट ये कुछ चीज़ें जो हैं, इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंट्रोडक्शन हर कोई पढ़ता है। मैंने जितनी कॉपीज चेक की, इंट्रोडक्शन पढ़ के यू गेट टू नो द लेवल ऑफ स्टूडेंट, फिर आप बस हेडिंग्स पढ़ते हो, अगर चीज़ें हैं तो उसके हिसाब से 1-2 मार्क जो भी एलोकेटेड होता है वो आप देखते हो, एंड फाइनली आगे बढ़ जाते हो कि चीज़ कोई नहीं पढ़ता है। तो this approach is good, but what content is it needs to be improved. Apprehension in its effective implementation. What are the apprehension? State-centered cooperation, inclusion of beneficiary, basically inclusion, exclusion error, corruption in leakages, financial burden. ठीक है, ये चीजें पॉइंट्स हैं, ये नेशनल सिक्योरिटी, hidden nutritional security. Concern as it goes against amber box, breaching subsidy limit. ठीक है, तो ओवरऑल ये चीज़ें सही थी। क्या एप्रीहेंशन इन इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन, फंड सप्लाई चेन, स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर, इंक्लूजन एक्सक्लूजन एरर, ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड। अब देखो, एप्रीहेंशन जो था वो खाली इस पे नहीं था, इसमें ये था जो तुम्हारे जो मार्जिनलाइज सेक्शन है ना, दे डोंट हैव एनी कार्ड एनीथिंग, और ये राशन बेस्ड है ना, विदाउट पेपर आप नहीं करोगे तो जो सबसे ज़्यादा मार्जिनलाइज हैं दे विल बी एक्सक्लूडेड। तो स्पेसिफिक पॉइंट अगर हाईलाइट कर पाओ तो देन, अगर आपका सप्लाई चेन ही नहीं है, जो इन्होंने से बात किया है, सप्लाई चेन नहीं है, अगर फूड नहीं पहुंच रहा है तो कैसे करोगे? इसीलिए इसमें एक स्पेशल प्रोविजन है इस एक्ट में कि अगर गवर्नमेंट वहाँ पे नहीं पहुँच पा रही है तो गवर्नमेंट विल प्रोवाइड मनी, ठीक है, टू दोज पीपल हु आर आउट ऑफ सप्लाई चेन ऑफ गवर्नमेंट या राशन कार्ड वाले से। बट देन अगेन बैक टू सेम थिंग, कि जब इनके पास कार्ड नहीं है, इनके पास कुछ नहीं है, तो कहाँ से मनी प्रोवाइड करोगे सर? तो दीज थिंग्स वर कोर लाइक एप्रीहेंशन, ये कैसे करोगे? आइडेंटिफिकेशन में इशू है, कुछ नहीं तो पहले आपको बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। यही बाद में केस भी हुआ, आधार जब लिंक किया तो कई लोगों को नहीं मिला खाना, एंड सम पीपल डिड डाई, ठीक है। तो ये चीज़ें बड़ा इशूज थे। फिर एक कंसर्न रिलेटेड टू WTO, वही आप बात कर सकते, ब्रीचिंग ऑफ सब्सिडी वे, डोर स्टेप नहीं, डोर स्टेप से ज़्यादा आपको बेसिकली मतलब ठीक है, इट कैन बी अ सोल्यूशन, बट मोर ऑफ जो ये है ना, इसको आपको एडजस्ट करना था। कोर ऑफ द कोर ये था कि बिल्ड सप्लाई चेन टू रिमोट लोकेशन, कनेक्ट डाउन ट्रॉडन विद सफिशिएंट डॉक्यूमेंटेशन, ये आपके वे फॉरवर्ड है, बेहतर वे फॉरवर्ड है, ये नहीं कि इसमें कुछ गलत है। Next is examine the impact of liberalization on companies owned by Indians. Are they competing with the MNC satisfactorily? Discuss. तो लिबरलाइजेशन से क्या हुआ है, सीधी सीधी बात है कि इसका लाइक LPG वाला सीधा सीधा क्वेश्चन है, उसका एग्जामिन हमें करना है इम्पैक्ट किस पे, इंडियन कंपनीज पे ना।
कंपनीज ओन बाय इंडियन कंपनी, सीधी सीधी बात है। देन उसके बाद हमें डिस्कस करना है कि क्या ये सेटिस्फैक्टरली एमएनसी जो ग्लोबल कंपनीज हैं उनसे कॉम्पीट कर पा रही हैं। तो इम्पैक्ट क्या हुआ, पहले तो आप सीधे सीधे लिखोगे कि लिबरलाइजेशन 1991 रिफॉर्म पे आप इंट्रोडक्शन कर दोगे, लिबरलाइज, ठीक है। देन उसका इम्पैक्ट कैसे है, तो आप जो है ब्रॉड स्केल, पहले तो सबसे पहले नंबर बढ़ गए बहुत सारा, आउटरीच बढ़ गई, एंड देयर इज अ इंक्रीज इन ग्लोबल इंडियन एमएनसीज, ठीक है। तो ये कुछ इम्पैक्ट आप डिस्कस कर दोगे। देन फाइनली कि इंडियन कंपनीज आर दे सेटिस्फैक्टरली कंपीटिंग, तो आप बात करोगे हमारा कि कुछ सेक्टर में दे आर कंपीटिंग एंड इवन आउट परफॉर्मिंग, बट लार्जली वी आर लैगिंग बिहाइंड। एक सॉफ्टवेयर सेक्टर छोड़ दो तो, टीसीएस छोड़ दो, तो कहाँ पे है, किस सेक्टर में, तो वो आपको बात करना पड़ेगा। खासतौर पे मैन्युफैक्चरिंग में बहुत सारा लैग है। तो इक्का दुक्का एग्जाम्पल है, फ्लिपकार्ट एग्जाम्पल था, अब तो उसकी ओनरशिप पे भी बातें हो रही थी। खैर देखते हैं इन्होंने क्या इंट्रोडक्शन लिखे हैं। फर्स्ट इंट्रोडक्शन इज लिबरलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग गवर्नमेंट इंटरफेरेंस इन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। इंट्रोडक्शन ठीक है। एग्जामिनेशन ऑफ इम्पैक्ट, सीधे इम्पैक्ट भी डाल दोगे तो कोई भी दिक्कत नहीं है, पूरा डालने की जरूरत नहीं है। क्रिटिकली वाली में आप थोड़ा दिखाओगे ना तो इम्प्रेशन आता है। फ्लो ऑफ कैपिटल, मार्केट, डोमेस्टिक प्रोडक्ट, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टर, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, नेगेटिव एलिमिनेशन, रिडक्शन। नेगेटिव असल में लाइक दे हैड टू, इंडियन कंपनीज हैड टू, या स्मॉल वालों को दे हैड टू फेस competition with well developed, highly skilled, highly technological companies। तो उस कंपटीशन में नहीं जीत पा रही थी, ये इशू था। कंपटीशन विद एमएनसीज फर्दर हैज टेकन इनिशिएटिव। यहाँ पे देखो आपको एग्जांपल देने थे और कुछ नहीं, कि कहाँ पे सक्सेस स्टोरीज है, कहाँ पे फेलियर है, जो कि अब ब्रॉड सेक्टर में फेलियर है। देन वे फॉरवर्ड देके आंसर खत्म करना था, और इस आंसर में कुछ है नहीं। Government further taken new initiative to ease blah blah ease government have further government further has taken new initiative to ease doing business in India। Ease of doing business, अब मुझे ऐसे दिक्कत होती है, क्यों होती है भाई, पढ़ने में ऐसी चीजें लिखोगे तो द स्टेप्स कैन बी, सीधा सीधा यार, वे फॉरवर्ड इतनी ही हेडिंग डालना है, स्टार्टिंग में एक दो बार लिख दो वे फॉरवर्ड, और ब्रैकेट में ये, बाद में सीधे ये डाला करो। नो यू डोंट हैव मच टाइम, इट इज सफिशिएंट। दो बार लिखने के बाद अच्छे से हाईलाइट करो वे फॉरवर्ड, उसके बाद सीधा इतना डालो। नेक्स्ट इज ये इतना हेडिंग काफी है। इन्होंने क्या लिखा है, इंट्रोडक्शन सेकंड, लिबरलाइजेशन अ काइंड ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म केम इन टू ईज गवर्नमेंट ओवर रेगुलेशन। अब ये आपने फर्स्ट वाले में देख लो भाई, वो सिंपल जो डेफिनेशन है ना, दैट्स समथिंग यू हैव टू अडॉप्ट। ये डिस्क्रिप्टिव है, अब बता रहे हो किस टाइम पे आया था ये चीज इतनी, नहीं, सीधे सीधे डेफिनेटिव अप्रोच उठाओ जो फर्स्ट में लिखा है, दैट्स अ डेफिनेशन दैट यू कैन अडॉप्ट इफ यू आर टेकिंग अ डेफिनेटिव इंट्रोडक्शन अप्रोच, ठीक है। देन आपकी हेडिंग पड़ जाएगी इम्पैक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन। अगर हेडिंग डाले तो एक्यूरेट हेडिंग होगी इम्पैक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन, ठीक है। बाकी अंडरस्टूड है। पॉजिटिव इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट, बेटर रेगुलेशन, रिड्यूसिंग ओवर रेगुलेशन, रैशनलाइजिंग टैक्सेशन, ये सब चीजें नहीं है। लाइक क्या क्या अगर हम लिबरलाइज करें तो ओपनिंग ऑफ एवेन्यूज कर रहे हैं ना, बहुत सारे एवेन्यूज पहले
गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्ट कर रखे थे, तो नए एवेन्यूज खोल दिए, ठीक है ना। एवेन्यूज इन टर्म्स ऑफ बोथ स्टार्टिंग कंपनीज, है ना, इन्वेस्टमेंट, मार्केट। देन आपका दूसरा एस्पेक्ट है ईजिंग ऑफ प्रोसेस। पहले 10 तरीके से आपको लाइसेंस लेना पड़ता था, ये सारी चीज़। अब आपको कोई लाइसेंस नहीं है तो आपको कंपनी खोलना आसान हो गया है, तो ईज ऑफ प्रोसेस जो है ना, ये है। तो ये आपको बात करके दिखानी पड़ेगी। ये चीज़ें आपके पॉजिटिव इम्पैक्ट हुए थे। देन नेगेटिव वही कंपटीशन, कंपटीशन में क्या हम कॉम्पीट कर पा रहे हैं सेटिस्फैक्टरली? यस, वेयर, क्वेश्चन शुड बी वेयर। एग्जाम्पल, नो, अगेन सेम चीज, वेयर, एग्जाम्पल, खत्म। लास्ट क्वेश्चन इज डिस्कस द rationale for introducing good and services tax in India, GST, that is, bring out critically the reasons for delay in rollout of its regime। ठीक है, जीएसटी क्यों आया था, ये तब बहुत अलग, लाइक तब के आंसर आप पढ़ोगे ना 14 वाले, आई हैव रेड देम, तो बहुत जीएसटी वाज इन सो मच पॉजिटिव, लाइक अरे एक मार्केट कर देंगे, बहुत फायदा होगा, टैक्स बढ़ जाएगा, सारी चीज। यू गो, सम इंस्टीट्यूट डू हैव 14 answer sheet and you will find that। Okay, the 101st constitutional amendment act introduced जीएसटी, जीएसटी ही लिखो, इतना ज़्यादा ना। एंड एस्टैब्लिश्ड, एक छोटी छोटी चीज़ें हैं बट यू कैन इनकॉर्पोरेट, छोटी छोटी चीज़ें बड़ा डिफरेंस पैदा करती हैं। 4 नंबर 5 नंबर का भी एक पेपर में अगर ये डिफरेंस हो गया ना 5 नंबर का, तो दैट ट्रांसलेट इनटू 20 मार्क्स ऑन 4 पेपर्स। ठीक है, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एंड एस्टैब्लिश्ड अ जीएसटी काउंसिल अंडर। अब जीएसटी काउंसिल की क्यों बात कर रहे हो भाई, यहाँ पे कहीं लिखा है क्या डिस्कस रैशनल? रैशनल हमें बेसिकली है ना उस पर फोकस करना है। इन इंडिया ब्रिंग आउट, ओके, देखते हूँ आपने भेज से पूछा है, या आप जीएस पेपर 1 में, सॉरी पेपर 2 में लिख रहे होते हैं तो बहुत अच्छा, और इसको हाईलाइट इतना ही करना होता है, सब कुछ नहीं। रैशनल फॉर इंट्रोडक्शन, चलो इनका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं इन्होंने क्या लिखा है। जीएसटी इज पैन इंडिया इनडायरेक्ट टैक्स इंट्रोड्यूस थ्रू वन, बहुत बढ़िया, बस ऐसे ही इंट्रोडक्शन चाहिए, शॉर्ट एंड क्रिस्प। रैशनल फॉर इंट्रोड्यूसिंग जीएसटी, हेडिंग डायरेक्टली टू द पॉइंट है। रैशनल फॉर डिले इन रोल आउट, यहाँ पे कुछ क्रिटिकल था ना, बोला था कि क्रिटिकली करो, क्रिटिकली ब्रिंग आउट क्रिटिकली द रीजंस फॉर डिले। ठीक है, रीजंस फॉर डिले, ठीक है, ये भी आप कर सकते हो कि आप उसमें क्रिटिकली इनकॉर्पोरेट कर दोगे, जो रीजन दोगे उसमें बात कर सकते हो। डायरेक्ट हेडिंग जरूरत नहीं है, क्रिटिकल रीजंस नहीं, दैट्स फाइन। आफ्टर इट्स इम्प्लीमेंटेशन सम कंसर्न लाइक decrease in revenue pool of state, cumbersome procedure, filing of GST, etc. has been observed. Government should work to do away with these concerns. आप यहाँ पे सीधे एक हेडिंग डालते हैं कंसर्न्स, या क्रिटिकल जो आपने लिखा है उसी में की कंसर्न जो है ये आए हैं, क्योंकि आप कंसर्न लिखोगे ना तो इट ऑल्सो, लाइक आप सीधे क्या करते हैं, यहाँ पे ये लिखा है ना रीजन, रीजन ये दे देते प्लस कंसर्न ऐड कर दिए ना, तो ये आप क्रिटिकल व्यू ले रहे हो, यू डोंट रियलाइज दैट, बट दैट व्हाट इट मीन्स कि आप क्रिटिकल व्यू लेके बात कर रहे हो। ठीक है, आप बात कहना और उसमें कंसर्न दिखाना, इज ऑटोमेटिकली बिकम्स अ क्रिटिकल overview of that situation, and then you will talk about way forward. So this is what it is। इनका लास्ट, इनका आंसर कंप्लीट कर लेते हैं। इन्होंने क्या लिखा है, रैशनल, फाइनेंशियल फेडरलिज्म, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, मीनिंग ऑफ वैट। ओके, तो देखो इसके 2-3 चीज़ें थी, रीजन फॉर डिले, लिमिटेशन अहेड एंड, ठीक है, यहाँ पे लिमिटेशंस
के टर्म में भी बोल सकते हो, वेन एवर यू आर टेकिंग क्रिटिकल व्यू, तो ये आप आइदर वे यू कैन डू दैट। बात करते हैं रीजंस की। तो बेसिकली टू कंसोलिडेट इंडियन मार्केट, ये था, ठीक है ना। ब्रिंग अबाउट यूनिफॉर्मिटी इन टैक्सेशन, ये रीजंस थे। अगर ये आपकी टर्म्स नहीं यूज कर रहे हो तो फिर गड़बड़ है, ठीक है। तो अभी फिर से अगर जीएसटी समथिंग दैट कैन बी लाइक आस्क्ड अगेन, और ये चीज़ें आपका बहुत इम्पोर्टेंट है। कंसोलिडेशन ऑफ मार्केट, यूनिफॉर्मिटी इन टैक्सेशन, ईज इन टैक्सेशन, ठीक है। और कमिटी एक हमारा एस्टिमेट थी, देयर वाज अ कमिटी, मैं इसका नाम भूल गया हूँ, इट रिकमेंडेड दैट इट वुड लीड टू सरप्लस, बेसिकली rationalization of taxation system would lead to growth, a high growth in tax collection, ठीक है। फर्दर इट विल एडजस्ट, जो अभी हम पढ़ रहे थे ना एफडीआई वाला, तो उसमें एक पॉइंट लिखा था कि टैक्स रेजिम, तो वो अनयूनिफॉर्मिटी और फ्रैक्चर्ड थी, तो उसकी वजह से ये था कि बहुत सारा एफडीआई आएगा, और देखो आया भी है। इंडिया हैज रीच द हाईएस्ट लेवल ऑफ एफडीआई इन दिस ईयर, हुआ है ना। तो ये उस टाइम के प्रेडिक्शंस थे, एंड यू विल सी कि दिस इज ग्रोइंग। So these were the reform which were estimated and predicted by a committee. उसको ध्यान में रखते हुए it was the need was felt to make Indian market as one unified market, so that there is a ease of process and procedures as well as taxation that brings about confidence in foreign market, that and easiness for them to invest in Indian market, hence leading to growth and development of Indian economy as a whole, and bring about changes in customers like services, and so it will overall bring about the improvement in quality of the life. So all around development जो है was envisaged through GST. So that's it for today's class. I was going to discuss other factors, like summary of first our GS paper 1 has been completed, but due to some difficulties I could not, and there is again demand for some freshers. तो अगर आपके कुछ freshers हैं तो I would need some fresher, तो आई वुड नीड कि कुछ अगर मुझे इनपुट मिलता है, और फ्रेशर्स के लिए भी कई लोग हैं पूछ रहे हैं कि क्या किया जाए, कुछ गाइडेंस। सो इफ देर आर सफिशिएंट नंबर देन ऑब्वियसली आई कैन एड इन दैट, ठीक है। तो अभी आज के लिए इतना ही है, एंड आई विल डू एड्रेस सम फ्रेशर क्वेश्चंस एंड ओवरव्यू लेते हैं, बट वो बाद में। आज के लिए इतना ही अभी के लिए, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वन।